مقدس سے آپ کو بہت بہت سلام اور خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلی قسطوں کے شروع میں بتا چکے ہیں کہ مصر کا درجہ مقدس سرزمین کا درجہ ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ بائبل مقدس کے بہت سے مقدسین اور شاندار کردار ملک مصر میں آئے، اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے باپ یعنی ایمانداروں کے باپ حضرت ابراہیم، اماں سارہ اور ان کے خاندان کا قیام بھی اسی سرزمین پر رہا ہے۔ اسی ارض مقدس پر ہی حضرت ابراہیم کی ملاقات مصر کے فرعون سے بھی ہوئی، اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہت سے تحائف سے بھی نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں وہ ایک مصری شہزادی تھیں، اور فرعون نے حضرت سارہ کی خدمت گزار کے طور پر انہیں ان کے ساتھ بھیجا۔ آج کی قسط میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور دنیا کے توحیدی مذاہب جن میں اسلام، یہودیت اور مسیحیت شامل ہیں، وہ بھی انہیں ایمانداروں کا باپ ہی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ ان مذاہب میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں سیکھیں گے اور جانیں گے کہ کیسے وہ رب العالمین کے تابع رہے اور کیسے وہ سب آزمائشوں میں بھی پورے اترے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں آج کی قسط کی جانب، اور یاد رکھیں کہ قسط کے آخر میں آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھوں گی، تو آئیں دیکھتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا وہ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا کہ بت اصل میں خدا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خدا ہی خالق ہے اور اس کی پرستش بتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ خداوند اس سے ہم کلام ہوا اور کہا، ابراہیم بت پرستی کے اس شہر کو چھوڑ دے، اپنے تمام خاندان اور ملک کو پیچھے چھوڑ دے، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ تجھے کہاں جانا ہے۔ میں تجھے ایک بڑی قوم کا باپ بناؤں گا، میں ان سب کو برکت دوں گا جو تجھے برکت دے، اور ان سب پر لعنت بھیجوں گا جو تجھ پر لعنت بھیجے۔ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ کیا ابراہیم وعدے کا فرزند ثابت ہو سکا جس نے گناہ اور موت کو ختم کرنا تھا؟ ابراہیم جانتا تھا کہ اس نے جو آواز سنی تھی وہ آواز خداوند کی تھی، بس اس نے فرمانبرداری کی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پیچھے بت پرستی چھوڑ کر جا رہا ہے اور زندہ خداوند کی پیروی کر رہا ہے۔ اسے خداوند پر بھروسہ کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس نے اپنے بھتیجے لوط کو اپنے ساتھ لیا۔ ابراہیم کے سفر نے اسے کنعان کی زمین تک پہنچایا، جہاں حام کا بیٹا رہتا تھا۔ آج کل اسے فلسطین کہتے ہیں۔ وہاں خدا نے اس سے کلام کیا، ابراہیم اس زمین پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر، میں کنعان کی یہ ساری زمین تیری آئندہ نسل کو دینے والا ہوں۔ میں تجھے بہت سے بچے دوں گا جن کو شمار نہ کیا جا سکے گا، وہ زمین پر خاک کے ذروں کی طرح بڑھیں گے۔ سارہ، خداوند نے مجھے کہا تھا کہ اب کئی سالوں کے انتظار کے بعد تیرے ہاں بچے ہوں گے۔ تجھے معلوم ہے کہ میں کبھی بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، اور اب میں بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہوں۔ میں بچے کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ خداوند نے کہا ہے تو کرے گی۔ جیسے جیسے ابراہیم زمین پر سفر کرتا گیا، اکثر اوقات وہ رکا اور خداوند کے حضور خون کی قربانی گزرانی۔ حابل کی طرح اس نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ گناہگار اور موت کے لائق ہے، ایمان کی قربانی دی۔ بھیڑ کی قربانی اس کے گناہ دھو نہ سکی، لیکن خداوند نے ابراہیم کا ایمان دیکھا تو خدا نے اس کے گناہ ڈھکے۔
10 बरस बाद। इब्राहिम, 10 बरस पहले तूने कहा था कि खुदा ने तुझे बताया है कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। अब मैं 75 बरस की हूँ और तू 85 बरस का। हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा अब तक कोई बच्चा नहीं। जल्द ही तू बच्चा पैदा करने की उम्र से गुजर जाएगा। तुझे यकीन है कि खुदा ने तुझे कहा था? मुझे मालूम है कि वो खुदा था जिसने मेरे साथ कलाम किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इतना इंतजार क्यों कर रहा है। उसने कहा है कि मैं एक बड़ी कौम का बाप बनूंगा, लेकिन मेरे पास ये बूढ़ा बदन, एक बूढ़ी बीवी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, और भेड़ों का एक बड़ा रेवड़ रह गया है। इब्राहिम, ना डर, मैं ही तेरी ढाल और तेरा बड़ा अजर हूँ। तू मुझे क्या अजर देगा जबकि मेरे से कोई औलाद ही नहीं है? सारा और तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। इब्राहिम, और सितारों को देखकर बता, क्या तू इन्हें गिन सकता है? आसमान पर सितारों की तरह तेरे ढेर बच्चे होंगे जो कि गिने ना जा सकेंगे। मेरा ईमान है कि जैसे तूने कहा है वैसे ही होगा। चूंकि तूने मुझ पर ईमान रखा, इसलिए मैं तेरे ईमान को रास्तबाजी गिनूंगा। ईमान रख के तेरे बच्चे ऐसी जमीन पर परदेसी होंगे जो उनकी ना होगी। जब वो 400 वर्ष बाद गुलामों की सूरत दुख उठाएंगे, और उसके बाद मैं उस कौम को सजा दूंगा और तेरी औलाद उस जमीन से बड़ी दौलत लेकर निकलेगी। फिर वो वापस यहाँ आएंगे और इस जमीन पर आबाद होंगे। बच्चा पैदा होने का वादा कहाँ है? मैं रोज बरोज बूढ़ी हो रही हूँ। जल्द ही तू भी अब बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। मैं तुम्हें कभी बच्चे नहीं दे सकती। ये इस जगह का रवाज है कि मेरी लौंडी अब मेरे लिए बच्चा पैदा करेगी। इब्राहिम, क्या तू देख नहीं रहा कि ये हमारे बच्चा पैदा करने का आखिरी मौका है? इससे पहले कि देर हो जाए तो इसे ले जा और बच्चा पैदा कर। ये तेरा बच्चा होगा और यही खुदा की मर्जी है। इसके बगैर तू किस तरह बड़ी कौम का बाप बनेगा? सिर्फ यही एक रास्ता है। इब्राहिम ने खुदा से दुआ ना की और खुदावंद का वादा भूल गया और अपनी बीवी की बात मानी। कई महीनों बाद, मुझसे इब्राहिम का बेटा पैदा होगा। जब हाजरा को मालूम हुआ कि उसके रहम में इब्राहिम का बेटा है, तो वो मगरूर हो गई और सारा को नीचा दिखाना शुरू किया। सारा नाखुश हुई और हसद करने लगी। सारा ने हाजरा से मुश्किल काम लेना शुरू कर दिए और उसके साथ बुरा सलूक किया। खुदा ने ये कभी नहीं चाहा था कि एक शख्स 2 बीवियां रखे या उसके बच्चे उसकी लौंडी से पैदा हों। जब तू पानी भर लाए तो आग के लिए लकड़ियां तकसीम कर देना। हाजरा ने बाग जाने के मंसूबे बनाए। हाजरा सारा के पास भाग कर बेयाबान में निकल गई। जब वो थक गई और आगे ना बढ़ सकी तो कमजोरी से बेहोश हो गई। खुदावन ने हाजरा के दुख और तकलीफ को देखकर कहा, हाजरा, सारा के पास वापस चली जा और अपने आप को उसके इख्तियार में दे। तुझे एक बेटा होगा और तू उसका नाम इस्माइल रखना, जिसका मतलब है कि खुदा सुनता है। उसके इतने बच्चे पैदा होंगे कि तू गिन भी ना सकेगी। इस्माइल एक सख्त आदमी होगा और हर किसी के साथ लड़ेगा और हर कोई उसके साथ। वो हमेशा अपने भाइयों के नजदीक रहेगा। हाजरा वापस चली आई और अपने वक्त पर उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। खुदा ने मुझे बताया है कि इब्राहिम का बेटा है और वो कई कौमों का बाप बनेगा। इस्माइल बाद में अरबी कौमों का बाप बना। इब्राहिम 86 वर्ष का था जब इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल की पैदाइश को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इब्राहिम बच्चे पैदा करने की उम्र से आगे बढ़ गया। क्या इस्माइल ही वो बच्चा होगा जिसका वादा खुदावन ने इब्राहिम से किया था? लेकिन खुदावन ने कहा था कि वो बच्चा इब्राहिम और सारा से होगा। खुदावंद अपना वादा किस तरह पूरा कर सकता है जबकि इब्राहिम और सारा दोनों बच्चे पैदा करने की उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े हैं? जब इस्माइल 13 और इब्राहिम 99 वर्ष का था, खुदावंद फिर उससे हम कलाम हुआ। इब्राहिम, मैं खुदाए कादिर मुतलक हूँ। वो सब कर जो मैं तुझे कहता हूँ और गुनाह ना कर।
जैसा कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। मैं अपना अहद तेरे और तेरे बाद तेरी औलाद से बांधूंगा। मैं तेरी औलाद को कनान की ज़मीन हमेशा के लिए मिरास के लिए बख्श दूंगा। मेरे वादे के मुताबिक सारा हामला होगी और बच्चा जनेगी, जो बहुत सी कौमों का सरदार होगा। ये किस तरह हो सकता है? मैं तो अब 99 वर्ष का और सारा 89 वर्ष की है। मेरा जिस्म तो मुर्दे की तरह है। हमारे बच्चे नहीं हो सकते। बराए मेहरबानी इस्माइल को ही वादे का फरजांद बनने दें। नहीं, जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि तेरा और सारा का अपना बच्चा होगा, तुम्हारे अपने बदनों से। बरकत का वादा उससे आगे बढ़ेगा, ना कि इस्माइल से। 1 साल के अंदर सारा एक लड़के को जन्म देगी। क्या ये मुमकिन है? हाँ, खुदावंद जिसने इंसान को तख्लीक किया है, वो यकीनन 2 बूढ़े लोगों को फिर से बच्चे पैदा करने के काबिल बना सकता है। यकीनन खुदा ऐसा कर सकता है। कुछ दिनों के बाद 3 आदमी रेगिस्तान से आते हुए नजर आए। उनको देखकर नहीं लगता था कि वो दूर से आए हैं और ना ही ये लोग मकामी लगते थे। वो मजबूत, पुरएतमाद और जवान थे। इब्राहिम ने उनको आते हुए देखा और वो जानता था कि ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके मेहमान इस दुनिया के भी नहीं थे। उनमें से 2 तो पाक फरिश्ते और तीसरा खुद खुदावंद था। वो फरिश्ते की सूरत में ज़ाहिर हुआ ताकि इब्राहिम से बात कर सके। इब्राहिम उनसे मिलने के लिए बाहर गया। इब्राहिम, तेरी बीवी सारा के यहाँ बेटा होगा। मैं जितनी बूढ़ी हूँ और इब्राहिम मुझसे भी बूढ़ा है, क्या मैं फिर लुत्फ उठाऊं? सारा क्यों हंसी जबकि खुदावंद कहता है कि उसके यहाँ बच्चा होगा? मैं नहीं हंसी। तू दर हकीकत हंसी थी। तू यकीन नहीं करती। क्या खुदावंद के लिए कोई चीज़ मुश्किल है? मैं दोबारा आऊँगा जब तेरे हामला होने का ठीक वक्त आएगा और तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। क्या मैं इब्राहिम को बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं? वो बहुत सी नस्लों का बाप होगा और वो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों को मेरी फरमाबरदारी करना सिखाएगा। हाँ, उसे जानने की ज़रूरत है। सदूम और अमूरा का गुनाह बुरी हद तक बढ़ चुका है। मैं उन दोनों शहरों में हर जिंदा रूह को मार दूंगा, हत्ता के मर्दों, औरतों और बच्चों को भी मार दूंगा। लेकिन मेरा भतीजा लूत और उसका खानदान भी वहीं रहते हैं। ये खुदावंद की शान के खिलाफ है कि वो रास्तबाज को बदकार के साथ तबाह कर दे। क्या हो अगर इस शहर में 50 रास्तबाज लोग रहते हों? क्या तू रास्तबाजों को बचाने के लिए सारे शहर को मुआफ कर देगा? मैं जानता हूँ कि तमाम इंसानों का मुनसिफ वही करेगा जो ठीक होगा। अगर मुझे 50 मिले तो मैं जरूर उस शहर को छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ खाक हूँ, खुदावंद के साथ बात करने के काबिल नहीं। लेकिन क्या हो अगर इस शहर में सिर्फ 45 रास्तबाज हों? क्या सिर्फ 5 लोग काम होने की वजह से तू सबको तबाह कर देगा? अगर 45 भी निकले तो मैं शहर बर्बाद नहीं करूंगा। क्या हो अगर सिर्फ 40 ही मिले? अगर 40 निकले तो भी बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे साथ नाराज ना हो, लेकिन क्या होगा अगर 30 निकले? मैं 30 के लिए भी उनको बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन अगर सिर्फ 20 हुए तो? मैं इस बदकार शहर को बिल्कुल तबाह नहीं करूंगा अगर वहां 20 भी हुए। बराहे मेहरबानी नाराज ना होना, मैं अब आखिरी बार पूछूंगा, अगर इस शहर में सिर्फ 10 रास्तबाज हुए, क्या तू फिर भी इसको तबाह करेगा? नहीं, अगर मुझे 10 रास्तबाज भी मिल जाएं तो मैं इस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। अगर तुझे 10 भी ना मिले, तू मेरे भतीजे लूत को खबरदार कर देगा? हम आज रात उसकी तरफ जाएंगे। दोनों फरिश्ते उस शाम को शहर की तरफ गए और लूत के घर की तरफ चले। ये मेरी सोचों से भी बढ़कर गुमराह है। अब मैं समझा कि खुदा हर एक को तबाह करने लगा है, हत्ता के बच्चों और जानवरों को भी। अजनबियों, सुनो, तुम रात सड़क पर नहीं गुजार सकते। ये महफूज जगह नहीं है। आज रात के लिए मेरे घर आ जाओ। हाँ, ये तो वाकई खूबसूरत है। हम जाकर बाकी आदमियों को उनके बारे में बताएंगे।
लूत, इन आदमियों को बाहर निकाल ताकि हम इन सब के साथ सोहबत कर सकें। चले जाओ, तुम उनके साथ ये बदकारी नहीं कर सकती। क्या ये अपने आप को हमसे बेहतर समझता है? मुनाफिक और रियाकार। ओ परदेसी, हम दरवाजा तोड़ देंगे और तेरे साथ बढ़ के बदकारी करेंगे। ये नफरत के लायक है। हमें तेरी बेटियां नहीं चाहिए, हम ये खूबसूरत आदमी चाहते हैं। खुदावन खुदा तुम्हें अंधा कर दे। वो लोग कहाँ हैं? इतना अंधेरा हो गया है। ओ, मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? ये किस किस्म की ताकत है? तुम्हें कल सुबह ये शहर छोड़ना होगा। जिनको तुम खबरदार करना चाहते हो कर लो। खुदावन पाक है और ये गुनाह ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदावन कल इस जगह पर आसमान से आग बरसाएगा। सदूम और अमूरा में हर एक शख्स मर जाएगा। जल्दी करो, आग जल्दी बरसेगी और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। खुदावन कहता है कि तुम मुड़कर इस जलते शहर को ना देखो, पीछे मुड़कर ना देखो। ओ नहीं अब्बू, अम्मी ने खुदावन की नाफरमानी की है और वो नमक में बदल गई है। इधर ना देखो, चलते रहो। उस दिन सदूम और अमूरा में हर जिंदा चीज मर गई। खुदावंद रास्तबाज है और गुनाह से नफरत करता है, खास तौर पर गुनाह करने वाली सोबत से जो आदमी आदमियों के साथ और औरतें औरतों के साथ करती है। इन सबसे बढ़कर जिनसी गुनाह वो है जो बच्चों के साथ किया जाता है। खुदावंद ने वादा किया था कि ज़मीन को कभी भी पानी से तबाह नहीं करेगा, लेकिन उसने आग के बारे में कुछ नहीं कहा था कि अगली दफ़ा तबाही आग से होगी। किसी भी गुनाह की सज़ा मौत है और ये मौत आग की झील में जिस्मानी और अब्दी मौत की शक्ल में होगी। खुदा के फजल से लूत खुदावंद की अदालत से बच गया। उसकी बीवी को यकीन ना आया कि खुदा ने वाकई उनको पीछे मुड़कर देखने के लिए संजीदगी से मना किया था। इसमें कोई शक नहीं कि सारे गुनाहों की सज़ा हमेशा की मौत होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि खुदावंद का फजल तुम्हारे साथ है। लूत, तू इस शहर में मर सकता था। खुदावंद गुनाह और बुराई से नफरत करता है। तुझे इस किस्म के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हमें तेरी बीवी के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ है। तुम अब क्या करोगे? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ चला गया और खुदावंद इब्राहिम को बरकत देता गया। जी नाजरीन, तो कैसी लगी आपको आज की किस्त? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो पहला सवाल सुने। इब्राहिम कितनी उम्र के थे जब इसहाक पैदा हुआ? ऑप्शन ए 40 बरस, ऑप्शन बी 99 बरस, ऑप्शन सी 50 बरस या ऑप्शन डी 80 बरस। सवाल नंबर 2, इब्राहिम किस बेटे को लेकर कुर्बान गा गया? ऑप्शन ए मूसा को, ऑप्शन बी दाऊद को, ऑप्शन सी इस्माइल को या ऑप्शन डी इसहाक को। सवाल दोबारा सुने और देखें। इब्राहिम कितनी उम्र के थे जब इसहाक पैदा हुआ? ऑप्शन ए 40 बरस, ऑप्शन बी 99 बरस, ऑप्शन सी 50 बरस या ऑप्शन डी 80 बरस। सवाल नंबर 2, इब्राहिम किस बेटे को लेकर कुर्बान गा गया? ऑप्शन ए मूसा को, ऑप्शन बी दाऊद को, ऑप्शन सी इस्माइल को या ऑप्शन डी इसहाक को। आप अपने जवाबात हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 0321 1138 296 या आप हमें ईमेल पर भी अपने जवाबात भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है nekobud@gmail.com। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। आप 24 घंटे के अंदर अंदर कल इसी वक्त तक हमें अपने जवाबात भेजें और पाएं अपना बेहतरीन तोहफा। तो सारा जमील को अगली किस्त तक इजाज़त दें। शुक्रिया।
ہے۔